उसको कन्नाडी। అట్లా ఆడుతుంటే అది వెళ్ళిపోతున్నాను. రిలాక్స్ వచ్చేస్తాను. जॉइंटिंग ने किया ना। नहीं, पहले नंबर पे और कुछ चाहिए? थोड़ा एक गिलास पानी। है ना। तो गिलास धो के लिखो कल का। हेलो। हाँ, आई हैव सेंड यू द लिंक इन द व्हाट्सएप। नो नो, इट्स ऑन व्हाट्सएप। Okay, okay. So can you share the email ID on WhatsApp?
Indresh Sharma, right? Hello. Hello. Sir, you can unmute yourself. Hello. Hi. Hi, sir. Sir, what do you Hi, do? Bhargav. How are you? Sir, अभी आप I'm coaching. audible? Hi, yeah, I can hear you. Are you providing coaching consulting or you are a business owner? Just give me some time. Just. Yeah. Okay. What is your portfolio right now? मतलब what you are doing presently? So I'm as a quality head working in the construction company. Okay. And what you want to proceed? मतलब how you want to become a business coach, consultant, or trainer? What you're looking exactly right now? Actually, I'm looking at online coaching training trainer. Sir, Then are you using how headphones? to help. Yeah. सर वो आवाज नहीं आ रही आपकी बरोबर तो आप उसको निकाल सकते हो Just. हम्म। Because hello. हाँ अभी प्लीज अभी थोड़ा ठीक है Okay. No, I am going. I want to just. Hello. Just. Yeah. I'm audible. हाँ आई कैन हियर यू Yeah. Yeah. Balkrishna ji. Just I want to know how to help to develop my coaching skills. हम्म And previously, I have already told you, I am as a हम्म quality head working in one of the prestigious our construction company. I am ओके looking the all our quality assurance and quality control plan, and हम्म I am handling the quality management system in our company. ओके Then I am working as a coach in for the some parts actually my, हम्म but how to grow our my business actually coaching business. ओके ओके एंड वेर यू बेस्ड एट And based at Ahmedabad, in अहमदाबाद Gujarat. ओके ओके एंड एंड व्हाट्स योर एज सर I am 40 years, 40  40. 40 ओके ओके as a business consultant you want to proceed or any other thing you want to do. Hello. Just 1 minute. सर आप मतलब एक बिजनेस कंसल्टेंट बन के आगे बढ़ना चाहते हो कि अ, Yeah, as a consultant and also to improve my coaching business. कोचिंग में अभी आप क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हो? कोचिंग में मैं अपना क्वालिटी डिपार्टमेंट से कोचिंग करता हूँ मैं। हम्म। सर हमारी बात हुई है ना इसके पहले शायद आप आए थे आधी मीटिंग ही थी नहीं, इससे पहले बात नहीं हुई थी। नहीं हुई थी आप आए थे ना शायद आप एक आध ज्वाइन हुआ था लेकिन बात हाँ नहीं हुई, नेटवर्क ट्रेवलिंग में था तो आवाज। हाँ वो ड्रॉप हो गए थे आप ठीक है मुझे याद है
ओके, अभी आप बताइए, मतलब आपको 5-10 साल आप कैसे देख रहे हो अपना, मतलब एज अ बिजनेस कंसल्टेंट या कोचिंग में क्या? मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी कि हाउ टू इम्प्रूव quality coaching business because अच्छा, of ओके। already I have already made my the quality management program also. हम्म। We are improving, but I want to just grow up अच्छा in अच्छा, lot that business. ओके ओके, इन द सेंस ऑफ रेवेन्यू, राइट? रेवेन्यू। Right. ओके। Definitely. एंड व्हाट इज योर करंटली रेवेन्यू यू आर मेकिंग? कुछ बना रहे हो आप अभी? Now current we have started before 2 months. 30,000 is revenue एटी is here. 80,000? 30. 30,000. Okay. Now we'll do a short presentation how we can help you, what are the services we are giving. Then after that we can have a conversation, right? तो एक 5-10 मिनट का ही है, तो मैं फटाफट आपको गो थ्रू करा देता हूँ, देन वी कैन हैव अ टॉक, राइट? सो hope you able to see my screen. Now, our main company is Fogra Foods Private Limited, and apart from that, there are four other brands, that is Vistar Business Summit, Fundwest, Coaching Community of भारत. तो ये जो पार्ट है दैट इज कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत. जो फंड वेस्ट में है, वो हमारे फूड कंपनीज को वगैरह फंडिंग वगैरह दे के उनके रेवेन्यू को बढ़ा के, जैसा भी कोई 1 करोड़ की कंपनी है तो उसको 10 करोड़ हम लेके जाते हैं, और जिससे हमारा जो रेवेन्यू है वो 10x हो जाता है जो भी हमने इन्वेस्ट किया था. तो ये हम लोग उसमें काम करते हैं. तो अलग अलग जो कंपनीज है उसमें अलग अलग काम होता है. नाउ ये जो कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत है, यहाँ पे ऑलरेडी देर आर 250+ कोचेस, कंसल्टेंट, ट्रेनर्स एंड बिजनेस ओनर्स विद अस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 50+ वेंडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, एंड होल कम्युनिटी स्टैंड आउट, और 500 साल का एक्सपीरियंस है उन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड. नाउ ये जो कंपनी है हमारी, इट्स इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. Now, in this 15-minute Zoom webinar, we will understand 26 different income model for the coaching, consulting and training community or business owners, जो अपने बिजनेस में लोग इम्प्लीमेंट करके 1 से लेके 25 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हो. नाउ हमारी कंपनी आपको क्या हेल्प करेगी? कोचिंग, कंसल्टिंग, उसकी स्ट्रैटेजीज बनाना, उसको ग्रो करना, आपका रेवेन्यू बढ़ाना, स्किल बिल्डिंग, कोचिंग ट्रेनिंग, डिलीवरी, ट्रांसफॉर्मेशन, सर्विस प्रोवाइड, वेंडर सपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर कंपनी. एंड वी हैव अ 50 डेडिकेटेड टीम टू गेट यू सक्सेस इन योर बिजनेस, कोचिंग बिजनेस. नाउ अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री के, ओवरऑल इंडस्ट्री जो है कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में, दैट इज अराउंड 44,000 करोड़ रुपीज, और ग्लोबली ये है 2 लाख करोड़ का, और आने वाले कुछ साल में ये $10 बिलियन इंडस्ट्री बन जाएगी. ना इसमें कुछ कैटेगरी है कि हम जो अभी बड़े बड़े नंबर्स बात करेंगे तो आप बोलोगे यार कोई बना रहा है इतने नंबर्स, सो लेट अंडरस्टैंड. सो देर आर कैटेगरीज ऑफ A, B एंड C, हमने इसमें डिवाइड किया है. और जो ए वाले हैं उनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू है, मार्केट शेयर भी अच्छा है उनके पास, उनके प्रोग्राम्स भी अच्छे हैं, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग दैट मच ऑफ मनी, एंड दे स्टार्टेड जस्ट लाइक अस. हमारे ही जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करके, डेवलप करके, अपने आप में इन्वेस्ट करके दे हैव अचीव दिस स्टेज. Now, Vivek Bindra is making around 300 crore rupees from his coaching, consulting business and other services. Rahul Jain is making around 100 crore plus. Rajiv Talreja is making around 22 crore rupees per annum. Now, there is a category B people who are making from 50 lakh rupees to 1 crore. Now, these people are from B category. They are in the mid journey, जहाँ से उन्होंने शुरुआत करके अपने आप को कैटेगरी बी तक लेके आए. Now, there is a people of category C. Now, these people remain in C category from 3 months, 6 months, 2 साल, 3 साल, और इवेंचुअली 2-4 साल के बाद इनका बिजनेस बंद ही हो जाता है क्योंकि ये अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई. नाउ अंडरस्टैंड, अगर हमारी कमाई जो है उसके हिसाब से हम लोग हमारा स्टेज देख सकते हैं कि हम लोग कौन से स्टेज पे हैं.
अगर आप अपने बिजनेस में अभी 0 से लेके 50,000 रुपये महीने बना रहे हो तो यू आर एट स्टेज 1, जहाँ पे कोई हमारी क्लियरिटी नहीं रहती, नीश क्लियरिटी नहीं रहती। आज हम बिजनेस कंसल्टेंट बन जाते हैं, कल फूड कंसल्टेंट बन जाते हैं, कल एनएलपी, ये वो, मतलब जो अपने को ट्रेंडिंग दिखा हम उसमें बार बार उड़ी मार देते हैं, घुस जाते हैं। तो जिससे हमारा लो टिकट बिकता है, सिस्टम्स नहीं रहते, खाली हमारा होप रहता है चलो ये महीने नहीं चला, अगले महीने, महीने नहीं चला, उसके अगले महीने, तो ऐसा कर करके बिजनेस हमारा इवेंचुअली एक दिन बंद ही हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है उनको कि नहीं यार मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम है, लेट्स डू समथिंग टू चेंज इट एंड अचीव द रिजल्ट्स। नाउ अगर ये सेल्फ अवेयरनेस आने के बाद वो आदमी अपने बिजनेस को चेंज कर लेता है, तो वो स्टेज 2 में जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। जहाँ पे वो अ पर्सन मेक्स अराउंड 50,000 रुपीज टू 2 लाख रुपीज पर मंथ, जहाँ पे उनके थोड़े क्लाइंट्स रहते हैं, वो थोड़ी बहुत इनकम कर लेते हैं, फिर भी वो डिपेंडेंट रहते हैं ऑन रेफरेंस। देर इज नो प्रेडिक्टेबल लीड इन देयर बिजनेस। सो व्हेन दिस अवेयरनेस फिर से आ जाती है उनको, यार नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, आई हैव टू चेंज माय बिजनेस, आई हैव टू चेंज माय स्ट्रेटजीज एंड टू चेंज माय ऑपरेटिंग सिस्टम, देन द पर्सन कैन मूव टू थर्ड स्टेज, जहाँ पे दैट इज कॉल्ड अ ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे अ पर्सन मेक्स अराउंड 2 lakhs to 10 lakh रुपीज अ मंथ, रेगुलर लीड्स आते हैं उनके, सेल्स आ जाती है, थोड़ा टाइम रहता है उनका अपने बिजनेस में कि जहाँ पे वो लोग स्केल कर सकते। नाउ व्हेन वी कम एट स्टेज 4, जहाँ पे 10 लाख से लेके 50 लाख रुपया वो अपने बिजनेस में बनाता है, जहाँ पे प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू आते हैं, टीम उनकी बन जाती है अच्छी खासी, एक सिस्टम आ जाता है उनके प्लेस में, एक ब्रांड बन जाता है जो पैसे लाके उनको देता है। Now, when the person get into stage 5, that is called authority, where a person makes around 50 lakhs to 1 CR from his business. He is an industry leader. He has a multiple streams of income. फ्रीडम भी उनके पास ज्यादा है और उनका इम्पैक्ट भी अच्छा है। Now, there is understand क्या कितने इनकम रेवेन्यू मॉडल एक बिजनेस अपने को जनरेट करके दे सकता है, राइट? व्हेन वी आर इनटू कोचिंग बिजनेस, जब हमने शुरुआत कर ली, वन ऑन वन पे हैं हम लोग, अभी थोड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन ऑन वन। नाउ जब आप वन ऑन वन को ऑटोमेटेड कर पूरा ऑटोमेट कर देते हो सिस्टम आपका, जहाँ पे आपके पास अभी सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है वन ऑन वन का, ना फिर आपको अपनी कमाई रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देन वी हैव टू ऐड सम न्यू प्रोडक्ट्स, या तो प्राइस उसका बढ़ाना पड़ता है, या तो कुछ नए सेगमेंट्स हमको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने रहते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट इनटू ग्रुप कोचिंग। तो ग्रुप कोचिंग में क्या होता है कि लेट्स से यू आर रियली गुड एट, आपकी कोचिंग बहुत अच्छी है, आप ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत अच्छा दे पा रहे हो, बट आप थोड़ा लैक करते हो सेल्स में, मार्केटिंग में, फंडिंग की थोड़ी इशू है आपके पास, टीम अच्छा नहीं है आपके पास, या तो नॉलेज स्किल कुछ आ रहा है आपको इंडस्ट्री में, जैसे एआई वगैरह आ रहा है, बट आपका एआई पे इतना पकड़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बाकी लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हो जो ये चार सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है। तो ये ये लोगों को लाने के बाद क्या होता है आपका, एक तो ब्रांड वैल्यू आपका बढ़ जाता है कि 10 लोग एक कोई एक चीज सिखा रहे हैं, ठीक है, और आपके जितने भी बिजनेस में कमी थी, मार्केटिंग की, सेल्स की, फंडिंग की, या तो प्रोडक्ट अपना इतना अच्छा नहीं था, टाइम की कमी थी, टीम की कमी, तो वो सारे लोगों को हमने लाके एक जगह पे डाल के, तो अपना जो प्रोग्राम है पॉलिश होके बहुत बढ़िया बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट को हम लोग और महंगा बेच सकते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए। और बाकी लोगों का हमारे पास क्या होता है, एक एक अच्छा खासा चेहरा मिल जाता है। लेट्स से कि अभी आपके साथ विवेक बिंद्रा पार्टनरशिप करता है, तो आपका प्रोडक्ट एकदम बढ़िया हो जाता है ना, जैसे एक मल्टी स्टारर पिक्चर रहता है ना, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान सब लोग आ जाते हैं, तो वो पिक्चर की वैल्यू ही बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही है ग्रुप कोचिंग। फिर जब हमारा ये सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है, यहाँ के सारे कंसिस्टेंसी, आपके टाइम वगैरह बचने लगा, यू कैन फोकस ऑन फिजिकल इवेंट्स। फिर उसके बाद हाई टिकट स्पीकिंग गिग्स, आपका कॉर्पोरेट इवेंट्स, मेकिंग अदर पीपल कोची कोची कोची। फिर उसके बाद
मास्टरमाइंड्स आपके, फिर आप दूसरे लोगों को ट्रेनिंग कंसल्टिंग ये सारी चीजें देते हो। जैसे आपने अपने बिजनेस में समझो 50 लाख अचीव कर लिया। नाउ यू आर क्वालिफाइड टू टीच अदर पीपल हाउ दे कैन गेट टू दिस स्केल। Selling your courses to foreign clients, foreign events, community paid members, business retreats, trips, one-on-one coaching, webinar, automated sales course, affiliate program, पार्टनरशिप्स। फिर उसके बाद आपका फ्रेंचाइजी लाइसेंसिंग मॉडल। ठीक है। उसके बाद आप एक अच्छी खासी ट्रेनिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें हर हर सेगमेंट में आपका रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। ना थोड़ा सा हम लोग दो सेगमेंट को थोड़ा डीपली जानने का ट्राई करते हैं कि कैसे ये वर्कआउट करता है। नाउ अंडरस्टैंड ग्रुप कोचिंग में होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जो अभी जो स्किल में लैक कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम ही ना प्रॉब्लम होता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई एक्सेप्ट करके उसको वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। तो हमारी कोचिंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। या तो आप मार्केटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, सेल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, फंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशंस में प्रॉब्लम हो सकते है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, जब आप स्केल करोगे तो ये प्रॉब्लम दिखने लगेगा। अभी तो आप शायद अकेले वो मैनेज कर लेते हो, लेकिन जब आप आपके पास 10, 20, 100, 50 क्लाइंट्स आने लगते हैं तब प्रॉब्लम इवेंचुअली स्टार्ट हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम आने से ही पहले हम लोग उसका सोल्यूशन फिक्स कर लेते हैं। और जब आप 10 कोचेस के साथ अपना कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हो तो एक हाई वैल्यू बन जाता है प्रोडक्ट। नाउ इसमें अंडरस्टैंड, अगर हम लोग एक सिंगल कोच रहते हैं तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे एक तो बहुत बड़ा ट्रस्ट इश्यू आता है। जब हम बेचने जाते हैं तो वहां पे बहुत मोस्टली 70 to 60% हमारा ट्रस्ट इशू की वजह से हमारा प्रोडक्ट वगैरह बिकता नहीं है मार्केट में। सोशल प्रूफ का प्रॉब्लम रहता है। बायर बहुत टाइम लेता है सोचने के लिए आपका प्रोग्राम। तो बहुत लेट होता है कोई भी प्रोग्राम बेच। बट वही जब हम लोग कोचेस के साथ आ जाते हैं, बाकी लोगों के साथ आते हैं, 10 लोगों के साथ आते हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद जो ऑडियंस पुल मिलता है, जैसे आपके पास 100, 200 लोग हैं, उनके पास 100, 500 लोग होंगे, किसी के पास 2, 4 हज़ार अपना क्लाइंट बेस रहता है, तो वो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है कि कस्टमर को लेके आना प्रोग्राम में, अगर आप 100 लोगों के साथ वेबिनार करते हो तो इजीली 50,000 से लेके 1 लाख का खर्चा। तो कन्वर्ट नहीं हुआ तो भी एक बड़ा बर्डन आ जाता हमारे बिजनेस में। लेकिन ये ग्रुप कोचिंग में वो सब नहीं होता हमारे साथ। ना आपका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाता है इवेंचुअली। जब ज्यादा लोगों को आप एक ही बार में बेच लेते हो तो वहां पे 40 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ का रेवेन्यू आ जाता है। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस अप स्केल के हो जाते हैं इनसाइड द प्रोग्राम। यू कैन सेल हाई टिकट कंसल्टिंग, फ्रेंचाइजी डील्स कर सकते हो, मास्टरमाइंड कर सकते हो। अगर 10 लोगों ने भी आपका अपग्रेड ले लिया तो 3 लाख से 30 लाख रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आप वहां पे जनरेट कर सकते हो। एक तो आपकी अथॉरिटी बहुत फास्ट होती है, यू आर स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट रियली क्विक। ट्रस्ट इश्यू ज़्यादा हो जाता है। आपका जो सेल्स साइकिल है वो रिड्यूस हो जाता है। फॉलोअप्स आपको इतने नहीं करने पड़ते कस्टमर को। द मनी कम्स फास्टर इन योर कोचिंग प्रोग्राम्स। तो एक वेबिनार का अच्छा खासा ऑडियंस मिल जाता है। बाकी लोग 10, 20, 100 वेबिनार लाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब आप 10 कोच आते हो तो एक अच्छा खासा ऑडियंस पूल आ जाता है आपके इसमें। तो एक एक वेबिनार में आप 50 से लेके 1 CR तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ना एज अ सिंगल कोच हमको 10-15 लाख का रेवेन्यू भी करना बहुत मुश्किल है। बट जब आप कोचिंग प्रोग्राम में जब आप अपने आप को डेवलप कर लेते हो, जैसे 10 कोचेस के साथ हमने प्रोग्राम हमारा कर लिया, तो 1 से लेके 5 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग मंथली कर सकते हैं। ना जो फाइनल इंसाइट है अबाउट द ग्रुप कोचिंग मॉडल इज दैट इट्स नॉट अ प्रोग्राम, इट्स अ business ecosystem monetizing machine. You're not selling your coaching, you're selling access to 10 growth engines. Now once that model has been totally automated, now you can shift your focus to getting into physical events, जहाँ पे आप 3 दिन के इवेंट में 1.5-1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट्स अपना बेच सकते हो।
और जो टिकट सेलिंग होती है वो अलग। नाउ ये जो कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत है, दिस आर द पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेस टू गेट द रेवेन्यू। तो जितने भी हम लोग रेवेन्यू गोल आपके लिए सेट करेंगे, तो ये सारे लोग आपको हेल्प करेंगे उसको अचीव करने के लिए। नाउ ऐसा जो प्रोग्राम है माइंड वैली या एक्सेल, टैग मैंगो, सक्सेस ज्ञान, ये लोग अपनी कम्युनिटी टाइप बना के बेचते हैं, जो 1.5 लाख, 2.5 लाख, 1,40,000, 75,000 के आसपास होता है। बट हम लोग ने बहुत ही सिंपल रखा है, जहाँ पे एक साल में आपको 50,000 देना है। और वो भी अभी खाली आपको हमको 10% देना है। 10% मतलब 5,000 रुपीज में आप प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर सकते हो। 3 दिन में आपका या तो वन ऑन वन स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप कोचिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दो दो सेगमेंट हम लोग आपको एक्टिवेट करके दे देंगे। आप अपना वन ऑन वन भी प्रोग्राम बेच सकते हो, और सेकेंडली ग्रुप कोचिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपना। नाउ दिस वाज द प्रेजेंटेशन। नाउ वी कैन आस्क क्वेश्चंस, राइट? आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हो आप। हाँ, अभी। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, आप सवाल पूछ सकते हो। बेसिकली लास्ट का जो 2-3 स्लाइड था, थोड़ा फिर से बता पाएंगे? कौन सा वाला? लास्ट से 2-3, एक मिनट। क्योंकि कोई आ गया था बीच में, तो ध्यान नहीं दे पाया। बैक, 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 या दैट इज, ये इनकम वाला? या यस दिस वन। दिस वन। सोलो कोच मीन्स बट, सोलो कोच मीन्स अभी आप अकेले काम कर रहे हो। ओके, दैट इज, मतलब इंडिविजुअल, इसमें से सेगमेंट रहता है। जैसे अभी आप सोलो कोच हो, राइट? अभी आप 50,000 से लेके 2 लाख, 5 लाख जो भी कर रहे हो, ठीक है। फिर इसको ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करके मतलब आप रिकॉर्डिंग क्लास कर सकते हो। ऑटोमेटिक आपकी बुकिंग हो जा रही है, आपके कंफर्म्स हो जा रहे हैं। जब सारा चीज ऑटोमेट हो जाने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, नाउ यू कैन गेट इन टू ग्रुप कोचिंग। तो ग्रुप कोचिंग में क्या होता है, कोई अच्छा खासा बंदा रहेगा। अभी अपने बिजनेस में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आपको एआई वगैरह आ गया है, तो ठीक, फिर हम लोग एआई सीखने जाए तो हम उतना टाइम वेस्ट है, राइट? ठीक है। तो एआई का कोई जो बंदा रहेगा तो उसको लेके आना है हमारे साथ कि भाई तू आ जा। ठीक है। क्योंकि हर चीज सीखने में क्यों वेस्ट करना, आपने जो 10 साल 15 साल किया है अपना, वो लाके अभी मल्टीप्लाई करते जाओ आप अपने आप को, है ना? उनको लेके आओ, फिर उनके साथ। अभी उनके पास ऑडियंस नहीं रही, कुछ ना कुछ रहता है जो जिससे आदमी कनेक्ट हो जाता है। तो हमको ये देखना है कि यार इसको कौन सा चीज इंटरेस्ट कर रहा है हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। पैसा है, टाइम है, क्या चीज है? अगर हम उसको जरा डीपली पूछेंगे तो अपने को उसको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो वो या वही इंटरेस्ट पे हमको बात करके उसको हमारी कम्युनिटी में लेके आ जाना। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप, एआई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है। तो जिसमें आपका लर्निंग जो टाइम है ना वो बच जाता। नहीं तो आप खुद अभी एआई सीखने बैठोगे तो फिर आपका 1-2 साल वेस्ट हो जाए। तो वो वेस्ट करने से अच्छा किसको हमने लेके आया पार्टनरशिप में, लाने के बाद हमारे प्रोग्राम में ऐड करके फिर हमने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो आपका जो अभी रेलेवेंस है ना, जैसे अभी मार्केट में अगर कोई
मैन्युअली वेबसाइट बनाना सिखा रहा है, और दूसरा है जो 5 मिनट में आपको वेबसाइट बनाना सिखा रहा है एआई के थ्रू। तो बच्चा क्यों 6 महीना अपना खराब करे, 6 महीना, एक साल? तो वो क्या बोलेगा, यार मैं एआई वाला सीख लेता हूँ, है ना। तो जैसे अभी आप कोई बच्चे को नॉर्मल फोन दो तो वो लेगा नहीं, उसको एंड्रॉइड फोन ही चाहिए। तो ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह भी है जो अभी जूना हो गया, हमको थोड़ा उसको पॉलिश करके एडवांस करके नए तरीके में बेचना है। तो अभी सब लोग तो सोलो फिर वही कर रहे हैं, आप भी वही करोगे तो फिर आपको भी वही स्ट्रगल। ठीक है ना। तो कुछ नया करने के फिर हमको कुछ तो नया करना पड़ेगा। जैसे अभी बिजनेस कंसल्टेंट है, सब लोग बिजनेस कंसल्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दस दस बिजनेस कंसल्टेंट को लेके आते हो अपने साथ, तो ये दिखेगा कुछ नया मार्केट में। इस पे आप कैसे मतलब क्या हेल्प करने वाले हो? अभी जैसे आपके जैसे लोग रहते हैं ना, तो अभी आपको मार्केटिंग में प्रॉब्लम है या तो सेल्स की प्रॉब्लम है आपको, तो आपका प्रॉब्लम जान के वैसे लोगों को लेके आने वाले जो उसको फुलफिल कर दे कि वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। तो ऐसे 5-6 लोगों का एक ग्रुप रेडी होता है, फिर वो मार्केट में हम लोग उसको जाके प्रेजेंट करके फिर वो बेचते हैं। तो हमारा काम है आपको लीड ला के देना, आपके क्लोजिंग वगैरह में हेल्प करना। आपका जो रेवेन्यू है, जब भी लेट्स से कि आप अभी जुड़े हो हमारे साथ, अ, अभी 1 लाख रुपए आपका रेवेन्यू है, तो ये देखेंगे कि आपका 5 लाख का रेवेन्यू कैसे होगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपके साथ डेवलप करके उसके उसके ऊपर हम लोग काम करने लगे कि सर हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जिससे आपका 5 लाख का रेवेन्यू अचीव हो जाए। ठीक है। तो ये कैसा रहता है, एक तो पहला हमारा ऑनबोर्डिंग फी है 5,000 रुपीज, फिर उसके बाद साल भर का 50,000 रुपया, फिर उसके बाद एक 9% आपके रेवेन्यू में, लेट से कि आपने 10 लाख रुपया बनाया हमारे साथ, ग्रुप कोचिंग, वन ऑन वन, फिजिकल, आपका फिजिकल इवेंट्स, फिर उसके बाद आप फॉरेन क्लाइंट्स को अपना कोचिंग बेचना, ट्रिप्स हो गए, तो ऐसा चीज कर करके आप पैसा बना रहे हो। तो आपने 10 लाख रुपए हमारे से कमाया, तो 90,000 रुपया हमारा, बाकी 9,10,000 रुपया आपका। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो क्या करते हैं बहुत से लोग, बेच के छोड़ देते हैं कि फिर आप देखते रहो। फिर क्या होता है, आपको समझ में ही कुछ नहीं आया या तो थोड़ा डिफिकल्टी हुआ तो आदमी 1-2 बार करता है, फेल हो जाता है, फिर बंद कर देता है। तो हम वो नहीं करते, क्योंकि अभी आपके ऊपर हमने अपना टाइम एंड मनी और एनर्जी इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे हम प्रोग्राम समझाते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। ठीक है। तो फिर हम एक नया कस्टमर लाए, फिर उनके साथ वही चीज करना पड़ेगा। तो रेदर देन क्या, आपका मेरा रिलेशन बन गया एक 6 महीने का, आप मैं आपको समझता हूँ, आप मेरे को समझते हो, तो आपके साथ ही हम लोग स्केल करेंगे, तो हमको वो चीज़ अच्छी है। नहीं तो बार बार नए कस्टमर लाना, फिर उनको समझाना, तो इससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है कि कस्टमर को लाना, उनसे बात करना, उनको ट्रेन करना, उनको समझाना, तो इसमें बहुत पैसा लगता है, बार बार नए लोगों को लाना। लेकिन वही हम लोग 100-200 वही आदमी के साथ काम करके, जहाँ ने उन्होंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, उनके बिजनेस को अगर 1 CR तक लेके जाते हैं, तो वो भी ग्रो करेंगे। हमको भी ये 100 क्लाइंट्स है, जो आज हमारा बिजनेस 10 करोड़ का है, वो 100 करोड़ का हो जाएगा। ऐसे ग्रो होता है, एक कस्टमर को ही आगे बढ़ाना रहता है हमको। आदमी क्या करता है, नए 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 कस्टमर लाता है, तो उससे आपका कॉस्ट बढ़ जाता है बहुत। एक नया कस्टमर लाने में, उसको ट्रेन करने में, उसके साथ मीटिंग्स करने में, फॉलोअप्स करने में आप उतना पैसा नहीं बना पाते। लेकिन वही कस्टमर अगर ग्रो कर गया, तो आप बना लो। ओके बालकृष्ण जी, एक पीपीटी शेयर कर सकते हैं, कैसा रहता है आपका आ, समझने के लिए? मैंने ये अभी कौन सा कुछ कर रहे हो आप, कौन सा प्रोग्राम आप बेच रहे हो, या मैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम करता क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम? हूँ, ये प्रोफेशन।
ये कौन खरीदते कौन लोग खरीदते? कंस्ट्रक्शन वाला। हाँ, कंस्ट्रक्शन वाले। कंस्ट्रक्शन, ओके, तो आप कैसा बात कर रियल सकते? एस्टेट। हाँ हाँ। अगर आपको है ना कोई भी कस्टमर चाहिए ना, तो आप ऐसा बोले हो कि मैं क्वालिटी मैनेजमेंट ये करता हूँ, वो ऐसे नहीं बात करने आप। ठीक है। आप ये बोलोगे कि आपके जो क्वालिटी मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम है वो आपको 10 10 लाख बचा के देगा, 1 करोड़ बचा के देगा, 50 लाख रुपए बचा के देगा, तो ऐसे बात करना है आपको। ठीक है। आप ये बोलोगे कि मैं क्वालिटी वाला पैसा, वो सब उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप ये बोलोगे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 10 करोड़ का है, तो अगर ये आप क्वालिटी मैनेजमेंट आप करते हो, कि क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है कि भाई साहब ने क्वालिटी मैनेजमेंट किया नहीं, एक पिलर वगैरह बना दिया, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट आया, जब चेक किया तो क्वालिटी का तो था नहीं, फिर उसको तोड़ो, फिर बनाओ, जो कॉस्ट पड़ जाता है। यही 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 कुछ है ना आपका प्रॉब्लम? नहीं, हमारा कैसा है, इसमें दो चीज़ें। हम्म। हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट 4 पार्ट होते हैं। एक तो हम्म। बेसिकली मेजर 2 पार्ट होते हैं। एक तो क्यूए होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, ओके एंड सेकंड होता है क्वालिटी कंट्रोल। ओके। और क्वालिटी एश्योरेंस में भी 3 पार्ट होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल में 4 पार्ट होते हैं। जो हम्म। क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड इनकमिंग मटेरियल क्यूएपीस रहते हैं। ओके। ओके, क्यूओपी में भी 2 पार्ट होते हैं। क्यूओपी इज क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में इनकमिंग मटेरियल एंड इन प्रोसेस मटेरियल, तो उसके अंदर मेथड स्टेटमेंट रहते हैं, चेकलिस्ट रहते हैं। अदरवाइज आपका हाउ टू डेवलप द सिस्टम, that is things is given in QAPs. ओके ओके। And after that we will go for further of the quality control. Quality control is given the all over building works, how to develop and how to satisfy to our client. It is the most important part of this quality control. The control the all things execution team, planning team, and another with the store team. These are included in this ओके, quality तो control. ये मोस्टली खरीदता कौन है? बिजनेस बिल्डर या कौन लेता है आपका सर्विस? This is we can say the civil engineers and the ओके। business person who need to grow in the quality control. सिविल इंजीनियर्स एंड ये Developers. डेवलपर्स। तो ये आप सर्विस बेचते हो कि खाली कंसल्टिंग बेचते हो उनको? बेसिकली अभी मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम्म। ट्रेंड करता हूँ। अच्छा, आप ट्रेन करते हो, सर्विस वगैरह नहीं देते? नहीं, सर्विस नहीं। तो ये मतलब आप बच्चों को सिखाते हो, बच्चे लोग को सिखाते हो? सिविल इंजीनियर जो जिस नहीं, आपका जैसे प्रोग्राम। डेवलपर ने जैसे बोला भाई हमारे यहाँ पे 15 इंजीनियर्स हैं, उनको हम्म। क्वालिटी के बारे में सिखाना है, अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे जाके सिखाता हूँ। ओके, तो ऐसे। एंड सेकेंड थिंग, आप एक काम कर सकते हो कि एज अ क्वालिटी आप इसका फ्रेंचाइजी या कंसल्टिंग बेच सकते हो, वो 1 1.5 लाख रुपए का हो सकता है। ठीक है। जिसमें आप क्या बोलोगे, स्टार्ट अ क्वालिटी, क्या आपके मतलब आपके बिजनेस का नाम का क्वालिटी? क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्वालिटी मैनेजमेंट, ओके। सो व्हाट यू कैन से क्यूएमपी। बिकम अ क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड मेक अ 5 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज अ मंथ। ठीक है, जिसमें आप सारी चीजें सिखाओगे कि आपको क्लाइंट कैसे लाना है, बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस ऑपरेशंस क्या होता है, वो सारी चीजें अगर आप डिटेल में से सिखाओगे तो आप ये 1 1.5 लाख का प्रोग्राम बना के ये सेल कर सकते हो मार्केट में। ठीक है। और आप अपने क्लाइंट्स को अ, हम्म, जो बिल्डिंग बना रहा है वो आपका सर्विसेज खरीदता है ना, ट्रेनिंग। तो आपके आजू बाजू में जितने भी हो रहे हैं तो आप सबको बेच देता है ना, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ। तो वी कैन वर्क ऑन दिस कि एक तो कोई नए बंदे को आप क्वालिटी कंट्रोलर बना रहे हो, ठीक है, कि आप अपने एरिया में जाके स्टार्ट करो बिजनेस। आपको डे 1 से हम लोग सपोर्ट देंगे, ठीक है, जैसे वो सीखने के साथ कमा भी सकता है। ठीक है। आप क्या करो कि कोई क्लाइंट लाके दे, जैसे अभी समझो एक क्लाइंट का बिल हो रहा है 50,000 रुपये, सॉरी 1 आध लाख रुपया, तो उसको आप 30 40 हज़ार रुपये दे के बाकी 60 हज़ार रुपये आप रख सकते हो, तो जिसमें आपको बल्कली पूरे इंडिया से मिलते रहेगा।
ये ऑनलाइन कर सकते हो कि आपको ऑफलाइन ही करना है, वहां पे ही जाके करना है? नहीं, दोनों बोथ आर। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट? तो आप ये कर सकते हो कि एक तो आप अपना है ना कि आप क्वालिटी कंट्रोलर बन जाओ हमारे साथ, जिसका प्रोग्राम का 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख आप चार्ज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप बोल दो कि आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीजें हम करेंगे आपके लिए। आपको लीड्स ला के देना, क्लोजिंग करना, तो जिससे क्या होता है कि प्रोग्राम फटाफट बिकने लगेगा आपका 1-1.5 लाख वाला। फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी कैसे शॉर्ट जूम मीटिंग लिया 15-15 मिनट का, तो आपके एरिया में जितने भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे, तो आप उनको कॉल करके एक 10 या 15 मिनट का जूम मीटिंग कर सकते हो उनके साथ कि सर ये आप हमारे ये सर्विसेज ले लो, जिससे क्या क्या फायदा होगा आप उनको बता सकते हो, ठीक है? वो एक तो सर्विसेज आप बेच दो। फिर उसके बाद जो बंदा उधर का है, जैसे समझो कोई क्लाइंट है आपका, महाराष्ट्र का क्लाइंट था, तो महाराष्ट्र का जो भी फ्रेंचाइजी जिसने लिया है, आप उनके साथ रेवेन्यू शेयर कर लो कि भाई ये देख, यहाँ पे थोड़ा तेरा बिका, थोड़ा मेरा बिका। जब आप उसको दो दो चार सेल लाके दोगे, तो जो जितना आपके साथ उसने इन्वेस्ट किया था, वो भी पैसा निकल गया। और रहा साल वाला, आप एक अच्छा ब्रांड भी बनते जाएगा आपका धीरे धीरे। तो इस पे काम कर सकते हैं हम लोग। आप ऑल ओवर पूरे इंडिया में 100-200 लोग भी हो गए, आपको कंटिन्यू लीड्स वगैरह भी आते रहेंगे, आपका भी काम चलते रहेगा। इसको भी बड़ा बना सकते हैं। ओके, थैंक यू बालकृष्ण जी। हम्म। ठीक है, तो मैं मेरा एग्रीमेंट भेजता हूँ, तो आपको आगे बढ़ना है कि नहीं? तो भेजिए, मैं देखता हूँ। जस्ट गो थ्रू। वो एग्रीमेंट में यही सारी चीजें मैंने जो पेमेंट टर्म्स वगैरह बताया था वही है, और कुछ नहीं। उस फिर आप साइन करके, पेमेंट करके आप अपना जो प्रोग्राम पीपीटी हम लोग स्टार्ट। बात करें तो वो भी थोड़ा भेजिएगा। ये तो जस्ट मेरा गो थ्रू दैट। ये पीपीटी मेरा है, ठीक है? ओके। हाँ, मैं भेज देता हूँ, और आपको ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, ठीक है? आप देख के, आप एक दिन का टाइम ले लो, कल आप मेरे को सोच के बताओ कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है ना? तो मैं वो थैंक यू। पीपीटी और रिकॉर्डिंग भेज दूँ। चलिए। या, ओके। थैंक्स। बाय बाय। नाइस टू मीट यू। ओके। बाय।